हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का जो है चैप्टर, जिसमें आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडियन हिस्ट्री, यानी भारत के इतिहास को समझना। सबसे पहले तो हमारा भारत का इतिहास समझना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है कि भारत का इतिहास क्या है। ये टॉपिक जो रहेगा कई मानने में कई क्लास के बच्चों को इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इवन कि बीए वाले बच्चों के लिए भी जो है ये कई मायने में इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important chapter doing here, understanding Indian history. There is a most important chapter, understanding of Indian history, and there is a first point, source for the reconstructing ancient Indian history. There is a most important here, source. The source for reconstructing ancient Indian history. There is a most important point here. A historian need to the source material to reconstruct their past, but source are thus originals do not reveal to the past. They need interpretations, and the historians make them speak. In fact, the historians is expected to track the source and read text, follow to the clue, ask relevant and question across the check the evidence to offer to meaningful explanation. For example, in 1926, a Kul's Masons is noticed that the high walls and the tower on the old settlement in Harappa village of the western Punjab, now in Pakistan, and five decided to the later Sir Alexander consumed is a collected some seals from the site, but it is a to a archaeologist is a John Marshall's another 50 years to the identity the oldest civilization in the Indian regions. We shall offer there is the another example regarding to the historians is a task to close the check is a corporate or different types of evidence. Now here in the source of pertaining to the King Harsha is the 7th century AD, do we find a mention of the defeat at the hand of the Chanakya rule of the Placations and the two. But their inscription of the Placations to his claims a victory over Harsha, and in this case it is a obvious that is a Harsa is the biographer is a Bana Bhatt who is wrote to the Hars Charitra, and related to that did not be mentioned their defeat of the Perons. And the related to the meaning of the Itihasa is their Itihas is this is was and is translated in a history. Their Itihasa is this is was there translated by a history, and there was a time when only written to record were to acknowledge and the authentic source of history. The written materials could be verified, cited, and the cross-checked, and oral evidence is a method, and the folk is a song was never considered as a valid source. Earlier historians used the methods, the fictions, and their oral traditional in the limited and the way on the account of their lack of the authorities and verifiability. The very fiability, but the today
This is a unconventionally source are began used to the eventually there is a traditional and cultural traits should be a studies in their light of other historical fact. There is the most important here itihasa. For example, the Mahabharata is a story of conflict between two sets of the warring cousins. The warring cousins here want not be sure whether there is a real war and the narrated in the epic. And some historians believe that is a war did happen when the other wait for the corroborative evidence for the event. The original story was probably to composed by the Bharas, known as the Sutas, who is generally is accompanying the Kasustra is a warrior to be a battlefield and recited a poem in the presence of the victories and other achievement of their heroes. This is a composition is were circulated to orally and is a preserved as a part of a human memory. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारत के इतिहास को समझना, देखिए भारत को इतिहास को समझना है तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि भारत की इतिहास कितनी पुरानी है। और ये सब बातें जो है हमें कुछ ग्रंथों से ही पता लगेगा कि भारत की क्या विशेषताएं थी। कहते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जो है पुनर्निर्माण के स्रोत के रूप में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की पुण्य संरचना के लिए जो है प्रयुक्त स्रोत सामग्री की आवश्यकता होती थी, लेकिन स्वयं स्रोत जो है अतीत को हमारे सामने नहीं लाते, उन्हें व्याख्या की जरूरत होती है। यानी देखा जाए तो कोई भी चीज़ जो है एकाएक अपने आप प्रकट नहीं होती है, इसके लिए व्याख्या की ज़रूरत होती है, उस पर समझ की ज़रूरत होती है और उस पर जो है एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। इतिहासकार उन सूत्रों को जो है वाणी देते हैं और इतिहासकार बताते हैं कि भाई ये क्या था और इसका क्या वैल्यू था उस समय में। तो ये जो है इतिहास का जो है समझने की ज़रूरत है हमें। वास्तव में इतिहासकार से जो है अपेक्षा की जाती है कि सार्थक रूप से समझने के लिए वह सूत्रों को ढूंढे, यानी कोई भी चीज़ का वो अगर बात बता रहे हैं तो उसके समक्ष उनका कोई प्रमाण जरूर होना चाहिए। पाठकों को पढ़े और सुरागों के पीछे जो है पीछा करे, क्योंकि इस सुराग से क्या मिल सकता है। उपयुक्त प्रश्न उठाए और जो है प्रमाणों को जो है सत्यता की जांच करे कि जो प्रमाण हमें मिला है उसकी कहाँ तक जो है सच्चाई आती है। उदाहरण के लिए अगर देखें सर 1826 में चार्ल्स मैनसन ने जो है पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा गांव में जो एक अब जो है पाकिस्तान में आ रहा है, किसी पुरानी बस्ती की ऊंची दीवारों और मीनारों देखी और इसके 5 दशक बाद जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसी स्थान की कुछ सील मोहरें एकत्र भी की, लेकिन इसके भी 50 वर्ष बाद जाकर पुरातात्विक जॉन मार्शल ने वहाँ सिंधु क्षेत्र की प्राचीनतम सभ्यता की पहचान की। अब देखिए ये कई मानने में जो है इम्पोर्टेंट बात यहाँ आ जाता है कि 1826 में जो है चार्ल्स मैनसन ने पंजाब के हड़प्पा गांव में जो है पाकिस्तान में है वहाँ ऊंची ऊंची दीवारों देखी और मीनारें देखी, ठीक है। उसके बाद जो है अलेक्जेंडर डेनिस ने उसी स्थान में कुछ सील मोहरें एकत्र की है और उसके बाद आगे चल के जब जॉन मार्शल ने वहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की तो ये सारी बातें एक दूसरे से काफ़ी जो है मिलती जुलती है। देखिए एक ने दीवार देखा, ठीक है, यानी उस समय दीवार थी जब ये देखा गया, यानी चार्ल्स मैनसन ने जब वहाँ पर के दृश्य को देखा तो वहाँ दीवार थी, ठीक है, और मीनार थे। लेकिन जब ये कुछ समय के बाद अलेक्जेंडर संधिम वहाँ पर गए तो वहाँ पर कुछ उनको जो है मोहरे मिले, ठीक है। लेकिन जॉन मार्शल के जब इसकी खोज हुई तो उन्होंने जो है पूरी तरह से प्राचीनतम सभ्यता की पहचान कर ली और उन्होंने इसका नाम जो दिया हड़प्पा सभ्यता दिया। इतिहासकार तरह तरह के साक्ष्यों की पुष्टि कैसे करते हैं उसका एक और उदाहरण हम दे सकते हैं कि राजा हर्षवर्धन। देखिए राजा हर्षवर्धन इस जो है ईशा की जो है 7वीं शताब्दी से जुड़े किसी स्रोत से हमें चालुक्य जो है पुलकेशन नृत्य के हाथों उनकी पराजय का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी देखा जाए जो हर्षवर्धन था राजा हर्षवर्धन, उसमें यह कहा गया था कि चालुक्य पुलकेशन नृत्य के हाथों उनकी पराजय जो है हुई थी, लेकिन इसका उल्लेख हमें नहीं मिलता है। लेकिन राजा पुलकेशन नृत्य के एक शिलालेखों में उसके द्वारा हराने का दावा भी किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी तथ्य है कि एक जगह हाँ देखिए एक जगह हारने का बात नहीं किया गया है, दूसरी जगह हराने की बात की गई है। तो ये थोड़ा सा तथ्य जो है कुछ स्पष्ट नहीं आ रही है। इसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि हर्ष की जो है जीवनी हर्ष चरित्र के लेखक बाण भट्ट ने जानबूझ के अपने आश्रयदाता की पराजय का उल्लेख नहीं किया,
ये भी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों जब इतिहास लिखी जाती है। मान लीजिए किसी को जो है आश्रय के रूप में, आश्रयदाता के रूप में जो है कोई राजा ने किसी को रखा है, तो वो उसकी बुराइयां नहीं करता है, जिसके वजह से जो है हमें सही साक्ष्य प्रमाण जो है नहीं मिल पाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमारे समक्ष आया है वो हर्षवर्धन की चरित्र थी, जिसको जो है बान्य भट्ट ने लिखा था। और बान्य भट्ट आपको पता ही है कि हर्षवर्धन के लेखक था और वो जो है आश्रयदाता के रूप में रहता था। तो उसने जो है ये बात को जो है पुलकेशन के द्वितीय के साथ जो युद्ध हुई उसमें पराजय की बातें उसने बिल्कुल ही मेंशन नहीं किया। तो यही इतिहास जो है बहुत काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा बना देते हैं। यहाँ पर हम जो है इतिहास के बारे में समझ रहे हैं, तो इतिहासक शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसा हुआ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद जो है हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री किया जाता है। एक समय था जब लिखित अभिलेखों को इतिहास का प्रमाणिक स्रोत माना जाता था और लिखित सामग्री की सत्ता जांची जा सकती थी, उसे उद्धव तक किया जा सकता था और अन्य स्रोतों से भी उसकी जो है पुष्टि भी की जा सकती थी। मृतक लोकगीत आदि जो है मौखिक साक्ष्यों का सही स्रोत माना ही नहीं जाता था। आपको पता है पुराने समय में अगर हम किसी भी जो है चरित्र की बात करें तो वहाँ पर जो है पहले मौखिक रूप में हुआ करता था, लोग गाया करते थे, ठीक है। बाद में जाके जो है इसको लिखित रूप दिया, लेकिन जब कहते हैं मौखिक रूपों को जो है कोई भी प्रमाण देने को तैयार नहीं होता था। आरंभिक इतिहासकार मृतकों की जो कथाएं और मौखिक जो है परंपराओं का सहारा नाम मात्र के ही लेते थे, क्योंकि ना तो उनके सही होने का कोई प्रमाण होता था और न उनकी सच्चाई की जांच हो सकती थी। लेकिन आज अनेक नए तरीक़ों से जो है गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग हो रहा है। परंपराओं और जो है सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का अध्ययन अन्य ऐतिहासिक तथ्यों की रोशनी में होना चाहिए, यानी इसके लिए जो है हर एक चीज़ का जो है सही जांच परख के साथ जो है इतिहास का जो है सही रूपरेखा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यदि हम उदाहरण के लिए ले तो महाभारत जो है दो भाइयों की संतानों के बीच हुए संघर्ष की गाथा है, जो आप लोग भी जानते होंगे। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि इस महाकाव्य में वर्णित युद्ध सचमुच हुआ था या नहीं। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह युद्ध वास्तव में हुआ था, जबकि कुछ अन्य इतिहासकार दूसरे स्रोतों से पुष्टि हुए बिना इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। मूल कथा जो है शायद सूतों द्वारा रची गई हो, जो आमतौर पर जो है क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी जो है विजय तथा अन्य उपलब्धियों की प्रशंसा में काव्य रचाकर जो है सुनाते थे। ये रचनाएं जो होती थी उस समय मौखिक रूप से ही प्रसारित होती थी और मानव स्मृति का एक हिस्सा बनकर सुरक्षित बची रहती थी। देखिए दोस्तों, ये बात कई मानने में सही तथ्य भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से हमने अपने मम्मी पापा से या अपने दादा दादी से सुना है कहानी जिसकी वास्तविकता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मुंह से हम सुनते ही रहते हैं। वो अपनी मम्मी को बताते हैं, वो उससे चलते चलते जो है हम अपने पूर्वजों तक पहुंचाते हैं, और कभी कभी यही रूप जो है एक कथा का रूप धारण कर लेता है। तो इसमें कोई तो राय नहीं है, लेकिन फिर भी है जो यहाँ पर कहते हैं जब तक तथ्य न हो तब तक इस बात का जो है प्रमाण देना संभव नहीं है। तो यही बात जो है इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ बनाता है। The most important topic here literacy source. There is the most important and the first year religious literature. There is the religious literature is the most important for evidence of the history. The most ancient Indian text contain of religious themes, and these are known as the Veds. Ved is the most important here. There are assigned to C is a 1500 to the 500 BC backward century, and there are Vedas are four in a number. The Rig Veda mainly consists of prayer. The Rig Veda here is the only for the prayers. The other three is a Samya, Azur and Earth contain a prayer, rituals, magic and the mythological story. There is a most important here. There contain prayer and the restricted is a magic and mythological story. The Upanishad is a content to the is a philosophical is a discussion on the Atma and Paramatma. There is a Upanishad here is the most important. There is a discuss here Atma and Paramatma, and they are also referred to be Vedanta. There is a Vedanta is very important here. The two epics is a Ramayana and Mahabharata is a seem to has been to finally is a complied by their AD 400 of the two.
The Mahabharata is attributed to the cells Vyasagya Vyasa, and it is originally to consist of the 8,800 verses, and there is called Jaya Gita or the song dealing with the victory. Jaya Gita are there or declined with the victory, and this later go to expand it to the 40,000 verses and the come to known as the Bharata, and because they are containing to a story of the is descendant of one of the earliest Vedic tribes is called Bharata. A further expanded version of 1 lakh verses was the named Mahabharata. The first fall is the 24,000 verses here, but today is a 1 lakh verses was named to the Mahabharata. And similarly, the Ramayana of the Valmiki originally is a consist of 600 verses and then 12,000 verses and the finally expanded to 24,000 verses. There is a most important here. In the post-Vedic period after the BC of 600, we have recorded a large number of literature on the moral value is called Sutra. Grand public other is sacrificed to be performed by the rules and recorded in a Saras Sutra, and will the domestical rituals is connected with the birth, naming, square, thread, and ceremony is marriage, furnace, etc. The prescribed there is a Gri Sutras is their literature was a complete between to the BC is a 600 to the 300 BC here. There is a most important. The religious is a book of the Jains and Buddhists refer to the historical person and incidents is connected with their respective religions. And the earliest Buddhist text is where to the written in a Pali. The Pali is the written by the Buddhists in their inscription, and they are called Tripatak. There is a call to the Tripatak and three basket. We is a Sutpatak, Vinay Patak, and Abhidham Patak. There is the most important here, three Patak. And of the most important non-religious Buddhist is literature or there is a Jataks. There is a content of story of the preview birth of the Buddha. It is the belief that before he was actually born in the Gautam. The Buddha is a passed through over to 550 is the births. Each birth story is called to the Jatak. Jatak is called to the 550 birth here called Jatak. This story through there is available is a light on the social and economical condition of the period between the 5th and 2nd century BC. The Jaina is a text where written in a Prakriti, and there is a eventually is a complete in the 6th century AD is a Valavi in a Gujarat. Is a Valavi in Gujarat. There is called Angas. Angas and contain to the philosophical concept of the Jains. यहाँ पर देखा जाए तो हम साहित्यिक स्रोतों के रूप में जो है इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतिहास के किस किस स्रोतों से जो है इतिहास की सही प्रमाण हमें मिलेगा, और भारत का इतिहास समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है कि जो है भारत का इतिहास क्या है, और ये सारी बातें जो है कई मान्य यूपीएससी एग्ज़ाम के जो बच्चे की तैयारी करने का सोच रखे हैं, अगर ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ते हैं समझते हैं तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। कहते हैं सबसे पहले हमारे समक्ष आता है धार्मिक साहित्य। कहते हैं भारत की अधिकतम प्राचीन रचनाएं धर्म से संबंध रही है और इन्हें वेद कहा गया है, और इसका जो है रचना काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व लगभग माना गया है। वेदों की जो है 4 है, आपको पता है वेद हमारे 4 होते हैं। ऋग्वेद में मुख्य रूप से जो है प्रार्थनाएं ही हैं। अगर ऋग्वेद की बात करें तो उसमें प्रार्थना ही है, प्रेयर ही है, और अन्य 3 वेद में जो है समवेद, अजुर्वेद, अर्थवेद में जो है प्रार्थनाएं, अनुष्ठान, मंत्र और पुराने कथाएं हैं। तो ये सारे वेदों में जो है हमें हर तरह के अनुष्ठान, मंत्र और पुराण कथाएं जो है बहुत मात्रा में उपलब्ध है। उपनिषदों को बात करें तो ये आत्मा परमात्मा के संबंधों को जो है दार्शनिक विभेदन करता है, यानी उपनिषद जो है आत्मा और परमात्मा के जो है विषय में बताता है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, इसे हम वेदांत भी कहते हैं। यदि हम बात करें रामायण की और महाभारत की तो कहते हैं हमारे सबसे बड़ा महाकाव्य ये 2 ही है, रामायण और महाभारत। इन 2 महाकाव्य का संकलन जो है अनुमानित ईस्वी सन 400 तक जाकर पूरा हुआ होगा।
इसमें से महाभारत के रचनाकार जो है व्यास मुनि है माने जाते हैं, और व्यास मुनि ने ही इसको बनाया भी था, यानी उन्होंने रचना पूरा किया था। इसमें जो है देखा जाए तो 8,800 श्लोक थे, और इसका नाम तो था जय गीत था, अथवा इसे विजय गान भी कहते थे। आगे चलकर इसकी विस्तार हुई और इसमें जो है 24,000 श्लोकों में हो गया। इसे जो है भारत कहा जाने लग गया, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वेद वंशों में एक जो है राज्य वंश के उत्तराधिकारियों की गाथाएं थी, और इसके और जो विस्तृत किया गया संस्करण तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक में बदल गया। देखिए कहते हैं ये धीरे धीरे कितना बदल गया। पहले 8,800 श्लोक हुआ करती थी, फिर जाके जो है जब भारत इसका नाम पड़ा तो उस समय 24,000 श्लोक थी। लेकिन अगर देखा जाए अभी के समय में तो 1,00,000 से ऊपर श्लोक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम बात करें व्यास मुनि की, तो जो उस समय रचना उन्होंने किया था तो सिर्फ 8,800 श्लोक ही थी, जिसे जय गीत या विजय गान के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज के समय महाभारत जो है 1,00,000 से अधिक श्लोकों के साथ जो है आज विद्यमान है। इसी प्रकार अगर हम मूल्यतः वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की बात करें तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना किया था उस समय जो श्लोकों की संख्या थी वो सिर्फ 6,000 श्लोक थी। लेकिन मगर आगे चल के जो है इसका विस्तार हुआ, और कहते हैं पहले 12,000 तक पहुंची और आज जो है ये 24,000 श्लोकों में हो गया है। तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत धीरे धीरे बदलाव हुई है और बहुत सी चीज़ों को जो है बदल के जो है एक नया रूप दिया गया है। तो इतिहास इस बात के लिए जो है साक्षी है कि ये समय समय पर जो है बहुत ही बदलाव देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक में वेदों के वाले जो है काल जो है 600 ईस्वी के बाद हमें जो है अनुष्ठान संबंधी ढेर सारा जो है धार्मिक साहित्य मिलते हैं, जिसे हम सूत्र कहते हैं। सूत्र में जो है हमारे सभी तरह के धार्मिक साहित्य के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जो है उसमें बताई गई है। राजाओं द्वारा बड़े बड़े बलि यज्ञ आदि के जो है विद्वान जो है सौत्र सूत्र में मिलते हैं, जबकि जन्म नामकरण और यशोवर्ती विवाह अष्टमी आदि संस्कार जुड़े घरेलू अनुष्ठानों का विद्वान जो है ग्रह सूत्र से मिलते हैं। गृह सूत्र से ये सारी चीज़ों का जो है विस्तार पूर्वक हमें जो है जानकारी प्राप्त होती है। इस साहित्य का संकलन जो है लगभग 600 से लेकर 300 ईस्वी के बीच मानी जा रही है। अगर देखा जाए जैन और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ के रूप में तो इन धर्मों से जुड़े ऐतिहासिक व्यक्तित्व और जो है घटनाओं का जो है विवरण देते हैं। आरंभिक बौद्ध रचनाएं पाली में लिखी गई थी, उन्हें जो है त्रिपिटक यानी 3 पिटारे कहा जाता था, जिसका जो नाम आपको पता ही होगा सुत्त पिटक जो था, विनयम पिटक था, अभिधम पिटक था। ये तीनों जो नाम है त्रिपिटक के नाम है जो आपको याद रखना चाहिए। सुत्त पिटक था, विनयम पिटक था और अभिधम पिटक था। धर्मों के इतर बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जातकों का रहा है, यानी जातकों का जो है बौद्ध धर्म में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। इसमें गौतम बुद्ध के पुण्य जन्मों की कहानियाँ हैं। माना जाता है कि गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध के जो है 5,500 जन्म और भी हुए थे, और इसका जो है विस्तार पूर्वक जो है वर्णन है वो जातक में वर्णन है, यानी जातक में उनके पूरे जीवन में जितने भी उन्होंने जन्म लिया है 550 जो है उन्होंने जन्म लिया, उसकी सारी व्याख्या जो है विख्यात इसमें दी गई है। हर जन्म की कहानी एक जातक कहलाती है। ठीक है, ये कहानियाँ ईसा पूर्व 5वीं से 2री शताब्दी के बीच के काल के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश भी डालती है। जैन पाठकों की रचना जो है प्राकृतिक भाषा में हुई थी और आगे चलकर इसका संकलन ईस्वी की 36वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। यानी इसका जो है संकलन कहाँ हुआ था? वल्लभी नामक स्थान पे हुआ था। किसका? तो जो ये हमारा प्राकृतिक भाषा में हुई थी, किसका? जैन पाठकों का। तो यूपीएससी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब पढ़ोगे अच्छे से तब ना आपको समझ में आएगा क्या चीज़ कहाँ पूछी गई है। इन्हें अंक कहा जाता है और इसमें जैन की दार्शनिक अवधारणाएं भी मिलती है, यानी इन सबको क्या कहा गया है? अंक का जो है नाम दिया गया है। The next topic is cellular literature. There is the most important for the understanding of history. This category of literature does not have a religion as the theme, and to this is a class belong to the Dharma Shastra as their law book, which are prescribed there is a duty for a different social group. Dharma Shastra is the most important book. There is a duty for different social group, and they set out a punishment for a person guilty of thief, murder, adultery, etc.
The earliest law book is the Manu Samriti. Manu Samriti is the most it was the first book translated by the British and format is the basis of a Hindu code of law. The Arthashastra is a Kautilya provides the rich of material for the study of Indian economics and politics of the Mauryan period. There is a most important here Arthashastra. There is a provided by the is a Kautilya. There is a Mauryan period, and the work on the grammar are also sometimes useful for the historical reconstruction. The earliest and their most important work on a grammar is the Astosya is written by the Pani, which is written by the scholar to around 700 BC. There is the most important. The work of the Kalidas, who is lived during to the Gupta period, is a comprised of poem and drama. There is a Kalidas is the most important for the Gupta period, and there is a poem and drama is a comprised. The famous among them are the Abhijanta Sakuntalam. Abhijata Sakuntalam is a very important, and Ritu Sumara and the Meghadutam. There is the most important here. And when Saris began to create of composition, they provide us with the glass piece of the social and cultural life of Guptas. There is a most important for the Kalidas. There is a compressed by the poem and drama for the Gupta period and the Abhijat Sakuntalam and the Ritu Sahara and the Meghadutam. There is a most important is the compositions. And for the history of the Kashmir, we have an important book called is a Raj Tarangani. Raj Tarangani written by the Kalhan. Raj Tarangani is written by the Kalhan in the 12 AD. The biographies as a characterized as a very important non-religion text for written in history. They are written by the court poet in the Paris of their foreign rules. As there is a tendency among them to the exaggerated and the achievement of the poem, and they have to be studied with the corrections, and the one such important text is the Harsh Charitra. Harsh Charitra written by the Banabhatta in the Paris of the Harshvardhana. There is the most important here. Harsh Charitra written by the is a Banabhatta is a Paris of the Harsh Charitra Vardhana. The early South Indian literature is called to the Sangam literature. It was written in a Tamil and celebrated is the nature. It was produced by the poet who joined together in the assemblies of Sangam, is patronized by the chief and king during to the first 4 century of the Christian era. Literature is a consist of the short and long poem is the press of the various hero, edited probably to be restricted in the court. It is also as a constitute there is a epics called to the Silpa Dhikram and many Mekhalali. There is a Sangam literature is our major source for the study of South Indian society, economics and political during to the BC 300 to the AD 300. And the inscriptions of given to the Sangam literatures are confirmed by the archaeologically is a find an account of the foregone travelers. अगला जो बात हमारे समक्ष आया है धर्मोकेतर साहित्य। देखिए धार्मिकेतर साहित्य क्या है। कहते हैं इस कोटि के साहित्य का विषय धर्म नहीं होता है, यानी देखा जाए तो इस कोटि के साहित्य का जो है विषय धर्म नहीं होता है, और इस वर्ग में जो है धर्मशास्त्र या संहिताएं आती है जो विभिन्न सामाजिक समुदाय के कर्तव्य का जो है विद्वान करती है। वह चोरी हो सकता है, हत्या हो सकता है, अभिचार आदि की जो अपराधों के लिए दंड निर्धारित किया जाता है, यानी इसमें सभी बातों के लिए जो है दंड का प्रावधान किया गया है। और इसमें सबसे पहला ग्रंथ अगर देखा जाए तो मनुस्मृति थी। मनुस्मृति में जो थी सारी बातों का जो है विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी, और यह वह पहला ग्रंथ था जिसका अनुवाद करके अंग्रेजों ने उसे भारतीय विविध साहित्य कोड का आधार बनाया था। यानी मनुस्मृति को ही अंग्रेजों ने जो है अंग्रेजी में अनुवाद करके भारतीय साहित्य की कोड का आधार बनाया था। और कौटिल्य के तो आपको पता ही होगा, जो चाणक्य के नाम से भी जाने जाते थे। कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र में मौर्य काल की भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति के अध्ययन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। यानी कौटिल्य की जो है अर्थशास्त्र से जो है लोग आज हर तरह की जो है अपनी जो है बातों को रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है कौटिल्य ने बहुत इम्पोर्टेंट बातें जो बताई थी अपना जो है
अर्थशास्त्र में, जिसमें उन्होंने सारी बातों का जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। इतिहास की पुण्य संरचनाओं के लिए कभी कभी व्याकरण ग्रंथ भी बड़े काम के साबित होते थे। ठीक है, व्याकरण पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो थे पाणि रचयिता अष्टधामी है, यानी पाणि रचयिता जो थे अष्टधामी है, जिसका रचना काल विद्वानों ने जो है 700 ईस्वी पूर्व के लगभग माना था। यानी जो व्याकरण पर आधारित थी, तो याद रखना व्याकरण पर आधारित कौन थी? पाणि रचयित अष्टधामी थी, जिसको जो है 700 ईस्वी पूर्व के लगभग माना गया। यदि बात हम करें कालिदास का, जो कालिदास जो थे गुप्त काल में हुए थे और इन्होंने जो है काफ़ी गुप्त काल में अपना विशेष योगदान दिया था। उन्होंने कविता और नाटकों की रचना किया था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जो इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध थी अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसके बाद ऋतुसंहार था, उसके बाद मेघदूत था। कहते हैं ये सारी तीनों रचना जो थी कालिदास का सबसे प्रिय रचना थी, जिसमें नाटक जो और कविताओं को जो है भरमार थी। महान रचनाओं होने के साथ ही ये हमें गुप्त काल के जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन की झलक भी दिखलाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी अगर चाहता जिस काल में थे, उस काल में जो हमारी जो सामाजिक स्थिति थी, हमारी संस्कृति जीवन थी, तो उसका भी झलक हमें देखने को मिल जाता है। कश्मीर का इतिहास जानने के लिए हमारे पास जो है राजा तरंगणी नामक एक जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना जो है कलहण ने किया था 12वीं शताब्दी में। यानी तरंगणी का जो रचयिता कौन थे? कलहण थे, जो कब किए थे? 12वीं शताब्दी में। और ये किस पे आधारित था? कश्मीर के इतिहास पे। तो ये सब जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम व्यू से। इतिहास लेखन में सहायता के लिए जो है धर्मोत्तर ग्रंथों में जीवनियाँ या रचित बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसकी रचना जो है दरबारी कवि अपने आश्रयदाता शासकों के गुणगान के लिए करते थे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आया है कि ये तो बात आपको भी पता है कि जिसके आश्रय में जो कवि थे, उन्होंने सिर्फ अपने आश्रयदाता के जो है गुणगान ही करते थे, कभी उनकी बुराइयों का जो है उजागर नहीं किया करते थे। इसलिए भी इतिहास थोड़ा समझने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। वो क्योंकि अपने आश्रयदाताओं की जो उपलब्धियां का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया करते थे, इसलिए उनका अध्ययन जरा सावधानी से करना चाहिए। और इस तरह की एक महत्वपूर्ण जो रचयिता जो है हर्षचरित्र है, जिसका रचना बाण्यभट्ट ने हर्षवर्धन की प्रशंसा में की थी। तो हर्षचरित्र जो था बाण्यभट्ट के द्वारा रचित की गई थी, जिसमें सारी बात जो था हर्षवर्धन के जीवन पे आधारित थी और उसी के गुणगान पे जो है बताई गई थी। तो ये थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। दक्षिण भारत का सबसे प्रारंभिक साहित्य संगम साहित्य कहलाता था। यानी दक्षिण भारत की हम बात करें तो यहाँ पर जो है आरंभिक साहित्य संगम साहित्य कहलाता था, और इसकी रचना तमिल में हुई थी। और यह जो है धर्मोत्तर साहित्य की श्रेणी में ही आता है। और इसके रचयिता वे कवि थे जो ईसा की पहली 4 शताब्दियों के दौरान राजाओं और सामंतों के द्वारा प्रायोजित सम्मेलन संगम में एकत्र होते थे। इस साहित्य में विभिन्न नायकों की जो है प्रस्तुति में रचित छोटे और लंबी कविताएं भी मिलती है। शायद इन्हें राज दरबारों में सुनाने के लिए रचा जाता था। और इस साहित्य के अंतर्गत शिल्प दिकारक्रम और जो मणि मेकली जैसे महाकाव्य भी आते हैं। अब देखिए शिल्प दिकारम और जो है मणि मेकली जैसे महाकाव्य जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं 300 ईस्वी से लेकर जो इस सन 300 की अवधि में दक्षिण भारत समाज में अर्थव्यवस्था और राजनीति के अध्ययन के लिए संगम साहित्य ही हमारा प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। यानी संगम संहिता ही जो है जिसके बारे में हम उस समय के जो है जान सकते हैं, जो दक्षिण भारत के बारे में बताते हैं। इस साहित्य में मिले वर्णनों की पुष्टि जो है प्राथमिक खोजों से और विदेशी यात्राओं के वृत्तांतों से होती है। यानी जो खोज किया गया उन्हीं वृत्तांतों को जो है हम साक्ष्य मान के इस प्रमाण को जो है प्रमाणित करते हैं और इसी को लेकर आधार भी बनाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको जानना चाहिए। इतिहास को समझने के लिए इन सब तथ्य जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है
समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।